جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جی سوئس گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ 1 جنوری 2025 سے حجاب یا برقع نہیں پہن سکتا۔ ویسے تو خیر ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی کے حساب سے ڈریس اپ ہونے کا پورا رائٹ ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح سے جب آپ پورا چہرہ کور کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے طالبان نے ایک چلا رکھا ہے کہ جی لیڈیز یہی پہن سکتی ہیں، اس کے بغیر باہر نہیں آ سکتی، بلکہ وہ تو کچھ بھی کر لیں باہر آنے سے منع ہے۔ لیکن اس میں کئی بار کرائم بھی دیکھنے میں ملے ہیں، کئی دفعہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح سے اپنے چہرے کو چھپا کر طرح طرح کے کرائمز بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آیا پاکستان اور ہندوستان میں بھی اسٹوڈنٹس نے اپنے آپ کو اس طرح سے کور کیا، اپنے آپ کو اس طرح سے حجاب وغیرہ پہنا، اور اس کے بعد پتہ یہ لگا کہ جب ایگزامز ہوئے تو جو اسٹوڈنٹ کا نام تھا، یعنی جس اسٹوڈنٹ نے ایگزام دینا تھا، اس کے بجائے کوئی دوسرا آ کر ان کا ایگزام دے رہا ہے اور اس پیپر کو سولو کر کے یا اس پیپر کو کمپلیٹ کر کے چلا گیا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت غلط ہے، اور ایسا نہیں ہونے کو لے کر کئی بار کرائم ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اب ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے، یا خاص طور پہ یورپین کنٹریز جو ہے وہ کافی پریشان ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اب اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ میرے خیال سے بات غلط ہے، پھر اس طرح تو پاکستان میں بھی کافی آتے ہیں غیر مسلم وغیرہ اور فارنرز آتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اس طرح کے امپلیمنٹیشنز دینی چاہیے۔ کلچر تو نہیں چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ ہم کلچر ایک ایکسیپشنل چیز آ جاتی ہے، ریلیجن سب سے پہلی بات ہے کہ ہم ریلیجن کو کیسے چھوڑیں اپنے۔ دیکھیں جب سوئٹزرلینڈ کنٹری ان کی ہے، تو اب جیسے یہاں پہ لوگ ریلی نکالنے آ کے جی یہاں پر جو ہے وہ آپ ہندو کلچر کرتے ہیں، تو ہم بھی ریزسٹ کریں گے نا، اسی طرح سے ان کی کنٹری ہے تو ان کے لوگوں کا دیکھیں مسلمز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، آپ ان میں رہیں اور آزادی سے رہیں، آپ حجاب کریں، برقع پہنیں، سڑکوں میں نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، مسلم کنٹریز ہیں ان میں رہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، آپ کافروں کے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ بٹ پردہ کرنے سے کسی کا کوئی قانون تو چینج نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی پردہ کر رہا ہے تو وہ دوسروں کو فورس تو نہیں کر رہا، مطلب پردہ کرنے کے لیے وہ اپنے لیے پردہ کر رہا ہے۔ مطلب ہم بہت زیادہ، آپ ابھی بھی دیکھ لیں کافی لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ مطلب آپ دوپٹہ لیں، یہ کریں وہ کریں اینڈ آل دیٹ۔ یہاں پہ بھی بہت کرٹیسزم ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی، کہ مطلب اگر کوئی لڑکی ایسے جا رہی ہے تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ آپ تو مطلب وہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا پیچھے پرسپیکٹیو کیسا ہے، یہ کس طرح کی لڑکی ہے، کس طرح کی نہیں ہے، وہ اسی چیز پہ ایمفیسس کریں گے کہ اس نے حجاب نہیں لیا ہوا۔ ہاں، مسلمانوں کی جو چیزیں ہیں ان کو ختم ضرور کر رہے ہیں کہ وہ ان کے مطابق نہ، وہ ان کے کلچر کو فالو کریں۔ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थल पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाए तो एक नया कानून पारित किया है। प्रतिबंध बुर्का, नकाब और अन्य मुंह ढकने वाले परिधानों पर लागू होगा। यह कानून 2021 में हुए जनमत संग्रह के आधार पर लागू किया जा रहा, जिसमें 51% स्विस मतदाताओं ने सार्वजनिक स्थल पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध का समर्थन किया था। नए कानून के तहत 21 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थल पर मुंह ढकने पर करीब 1000 स्विस फ्रैंक लगभग 97,000 का जुर्माना लगेगा। चलिए इस टॉपिक पर आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन होता सब कुछ है। अब हम बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड में बुर्का जो है वो बैन कर दिया गया। इसका जरा कल्चर समझना होगा। स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका, कनाडा, या यूरोप के जितने भी मुल्क हो गए, ठीक है। एक वक्त था कि यहाँ पर पहले जो है इस्लाम से रिलेटेड कुछ इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, फिर इनको नेशनैलिटी मिली, फिर मदरसे भी बने, फिर मस्जिदें भी बनी, फिर इनको क्योंकि अंग्रेज जो लोग हैं, अगर हम अपनी सादा जुबान में कहें तो ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि आप जैसे चाहें आप रह सकते हैं, और फिर लोग यूरोप जाते ही क्यों, अपनी मन मर्जी करने ना, क्योंकि किसी मुल्क में शरिया है तो किसी मुल्क में जमहूरियत नहीं है, तो वहाँ पर लोग इजीली अपनी ज़िंदगी को अपने पसंद के मुताबिक जो है गुजारते हैं, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब आपने कहा कि क्यों बैन हो रहे हैं जी, ये बुरखे शुरखे क्यों बैन हो रहे हैं। अब देखिए, आप एक ऐसे मुल्क में हो जहाँ पर मेजोरिटी जो है नॉन मुस्लिम की है, और फिर आप वहाँ पर जाते हो क्योंकि आपको मुसलमान के मुल्क में नहीं रहना। आप मुस्लिम हो तो आप सऊदी अरब जाओ ना, आप मिस्र जाओ, आप कुवैत जाओ, आप बहरीन जाओ, 57 कंट्रीज है ना। तो पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज तो गरीब नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी मुल्क है, अमीर मुल्क है मुसलमान। आप वहाँ वहाँ नहीं जाना, आपको जाना है यूरोप। फिर आप जब वहाँ पे जाते हो तो फिर आपको वहाँ पे बहुत जोर का इस्लाम याद आ जाता है, और फिर वो आपने खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए वो आपने उसको, फिर आप वहाँ पर जाके जो है अंग्रेजों को कन्वर्ट करवाना शुरू हो जाते हो
फिर वो वहां से भी नहीं रुकते तो फिर आप अपनी खवातीन को कहते हो बुरखा पहन के अब चलो। अब एक ऐसा मुल्क जहाँ पे लोग शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं और एक बिल्कुल जो है बुरखे के अंदर आपकी आइडेंटिटी ही नहीं शो हो रही। आप लड़का हो, आप लड़की हो, आपने नीचे जॉगर्स पहने, आपके पाँव की निशानी, हाथों पे ग्लव्स पहने, इतनी इतनी आंखें आपकी नजर आ रही है, तो वो तो डरेंगे ना कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं और ये क्यों छुप के फिर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो वो ऐसा नहीं है ना कि किसी ने छेड़ दिया तो कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर के मुल्कों के तो कानून बड़े अच्छे हैं जहाँ पे आपको जस्टिस मिलता है, जहाँ पे आप अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते हो। अब देखो एक मर्द है जो पाकिस्तान में भी अक्सर पकड़े जाते हैं, औरतों के बुरखे पहन के औरतों के बाजार में घुस जाते हैं, औरतों को ही जिस तरह से वो हैरास करते हैं, पकड़ने पे जब इनके बुरखे उतारे जाते हैं अंदर से इनकी जो है वो कहते हैं ना शक्लें निकलती हैं मर्दों वाली, तो फिर ये मार खा के मुंह छुपा के भागते हैं। तो बुरखे के अंदर अब लोग क्राइम कर रहे हैं। अब किसी ने अपनी फेस ढका हुआ है तो वो अब एडवांटेज नहीं रहा ना उनके पास। सीसीटीवी का कैमरे के फायदा ही क्या है अगर सब लोग अपने मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। मैं कोई ना इस्लाम के डेफिनेटली अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं मुसलमानों के अगेंस्ट हूँ, मैं एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट हूँ। और ये फतवे लगाना इज एक्सट्रीमिस्ट। मैं किसी और मजहब के लोगों को नहीं जानती प्रीचर्स को जो फतवे लगाते हैं, ना हिंदुओं को मैंने देखा फतवे लगाते हुए, ना मैंने क्रिश्चियंस को देखा है। तो जब मुस्लिम स्कॉलर्स जो एक्सट्रीमिस्ट हैं फतवे लगाते हैं वो खुद अपने मजहब को बदनाम करते हैं। सेम यही खबर जैसे स्विट्जरलैंड से खबर आ रही है, इसके ऊपर पाकिस्तान में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं की जा रही, लेकिन इससे आधी खबर भी इंडिया से आती, किसी यूनिवर्सिटी किसी स्कूल से ऐसी खबर आ जाती कि भाई बच्चों को, जैसे एक अल्लाह अकबर गर्ल बहुत वायरल हुई पाकिस्तान में, जी देखे इंडिया में पाबंदी लगा दी गई हिजाब के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट मैं 99.9% पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती हूँ, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी रही। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मुझे नहीं पसंद पाकिस्तानी, और मैं इंडियन के हवाले से आप कह सकती हैं, लेकिन अदरवाइज मैं तो समझता हूँ किसी भी सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, नो डाउट ऐसा भी है कि बुरे लोग ज्यादा होते हैं, मैं ये भी चीज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन 99% यार पाकिस्तानी है, कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में मैं बोल रही हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि सारे पाकिस्तानी, मगर यस मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 99% फ्रॉड होते हैं, एक नंबर के झूठे और मक्कार होते हैं, मुझे पसंद ही नहीं है। पाकिस्तान में हमें ये बताया जाता है कि जी वेस्ट का कल्चर बहुत गंदा है, बहुत फहाशी है, बहुत बेहयाई है। फोन देखने का जो सिलसिला है कि इतनी गंदी जहनियत बना ली है पाकिस्तानी लड़कों ने और आदमियों ने, गंदे गंदे फोन देखते हैं, उनको लगता है यार अंगोरियां फोन में कितनी मजे की होती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं। ठीक है, जब यहाँ आते हैं उनको लगता है हम सब फोन स्टार्स हैं। अगर आप इतने मजहबी हैं कि आपको पूरा ढक के लेडीज को रखना है, तो मगर आप माइंड नहीं करते कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो या अकेले आए और उन लेडीज के साथ उठे बैठे जो ऑफकोर्स स्कर्ट पहनी भी होती हैं या बकीनी पहनी भी होती है, तो आदमियों को तो कोई मसला नहीं है भाई, आप इतने मजहबी हैं, आपको मसला नहीं है कि ऐसी लेडीज के साथ आप उठे बैठे, मगर अपनी औरतों को आपने ढक के रखा हुआ है। तो यहाँ ये बहुत डबल स्टैंडर्ड वाली बात है और मैं तो बहुत खुश होती हूँ जो बैन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो मजहबी होने का जो ड्रामा करते हैं, जो यूरोप वेस्ट मुल्क में आते हैं, ये कोई मजहबी नहीं है। मजहब का ड्रामा करना है अपने मुल्क में जाके करो, जो मुस्लिम मुल्क है यहाँ पर आने की जरूरत नहीं।